not everything that is happening in Jharkhand, Jamtara right now, we could show in our series. Yeah. It's hardly 40-50%. तो जब से मैं आया हूँ तो अकाल पड़ा हुआ था, काम ही नहीं था, काम ही नहीं था, कुछ एवेन्यू ही नहीं था. टेलीविजन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल हु वर्क इन टेलीविजन एंड बट मेरे बस की बात नहीं है. अगर आप अपना परफॉर्मेंस सीजन 1 में इवन इफ यू हैव डन लाइक 60 या फिर 50%, सो यू कैन नॉट गो बिलो दैट. आपको उसके ऊपर ही हिट करना है. आई डू सिंग एज वेल, और पता नहीं फिर 2 साल बाद लगेगा कुछ और ही करना है. तो आई एम स्टिल दैट किड, जैसे आज फौजी बनना है, कल डॉक्टर बनना है, कल कुछ और बनना है. Nobody's ever asked me this, but this is a great question. You know, sometimes you get very excited when you see content. Because क्या है कि आजकल बहुत content मिलता है. So you just flip through, then you go through new stuff. For me, the only thing that draws me to content is not the name. It's not even the story. I just want to see fine performances. So I have to compliment you all. It is brilliant performances. Thank you so much. One gentleman who is there morning to night everywhere, sir. You are the new face. बहुत शुक्रिया. परेशान हो गया. But Amit, you are a fine performer. और किस तरह अच्छा बुरा स्लीजी नॉन स्लीजी इतनी खूबसूरती आप दिखाते हैं. इनब्रेड है. बात करेंगे इसकी सर. फैंटास्टिक. द क्रिएटर ऑफ दिस मास्टरपीस व्हिच हैज स्कैर्ड द लाइफ आउट ऑफ मी. Half of India will hate you because now we know the reality of it. Sir Soumendra Ji, thank you so much for being with us. Thank you, sir. And Sparsh and Monica, thank you so much for joining me. Thank you. You know, my idea of this kind of a show is that this is too real. शायद ये 5 साल पहले कोई मानने को तैयार नहीं होता कि ऐसा एग्जिस्ट भी करता है. मेरे को याद, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जब ये इतना रियल हो जाता है, द बिग पावर्स टू बी गेट वेरी स्कैर्ड. आपने इतना बनाया कैसे सर, एंड स्टिल कंटिन्यू टू मेक इट एंड विदाउट एनी फियर? इतना रियलिस्टिक कैसे बना सकते हो आप? So I always believe you are as good as your team. So I think that ecosystem that Viacom Netflix gave me, that complete autonomy to do whatever I want to do. Even though they had this amount of budget, but you do whatever you want to do. So that is very empowering. No, that is okay as far as the show. Filmmakers कई बार ये तो जान जोखिम में डालने वाला शो है for a maker because it's so real. You know, I think it's an eye opener because unfortunately or fortunately ये continue होते जा रहा है. You know, so for you to think about, of course, the success of one will result in more success with 2 and then carries on to the series. But were you also shocked when you were making this कि ये non-stop चलते कैसे जा रहा है और इसको कोई रोक क्यों नहीं सकता? We followed the characters basically, and not everything that is happening in Jharkhand, Jamtara right now, we could show in our series. It's hardly 40-50%. So if we had an opportunity to move to other like season 3, season 4, more shocking revelations will come out, and it'll be like character driven. So a lot of things. अगर मैंने एक scam दिखा भी दिया, but it doesn't fit in the show, it doesn't make it. So there are a lot of scams that we couldn't explore because it didn't fit in our scheme of things, story. So, but what amazing, like as we are speaking, new scams are coming up and it's like a cat and mouse chase. Unbelievable. It's so interesting actually, you know. Z level security आपको दिलवा देंगे. हमें जी बताइए, this new दौर of yours, you know, where such brilliant performers like you constantly on different platforms. पहले ये डर होता था, overexpose हो जाएंगे, you know, as they used to say. Television वाले लोगों को तो फिल्में भी नहीं दी जाती थी. Too many people have seen you. ऐसा कुछ डर है? नहीं, ये ओवर एक्सपोजर का डर तो नहीं है, बट ये ज़रूर है कि लाइक फॉर एग्जांपल द लास्ट 2 years आई वर्कड टू मच. तो वो अपने आप ही अंदर से आता है कि यार अभी वो वर्ज यू कमिंग टू दैट पॉइंट वेयर यू स्टार्ट टू फील बर्नट आउट, यू नो, यू बर्निंग आउट द स्टीम इनसाइड ऑफ यू. तो वो अपनी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद की होती है कि स्टेप बैक अ लिटिल, यू नो, थोड़ा. Now you enjoying the stardom now? यार मुझे तो मतलब लगता ही नहीं है कि मैं स्टारडम में हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक्चुअली में जब से मैं आया हूँ, कुछ 16-17 साल हो गए मुंबई में, तो जब से मैं आया हूँ तो अकाल पड़ा हुआ था, काम ही नहीं था. काम ही नहीं था, कुछ एवेन्यू ही नहीं था. टेलीविजन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल हु वर्क इन टेलीविजन एंड यू नो, बट मेरे बस की बात नहीं है. उसमें जो डिसिप्लिन चाहिए, इतना डिसिप्लिन तो है ही नहीं मेरे अंदर, क्योंकि आप रोज़ सुबह उठ के जा रहे हो, रोज़ आप रात तक काम कर रहे हो, फिर मतलब आपका एक दिन अगर ऑफ है तो, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो टीवी में काम करते हैं, तो कभी कभी कुछ नया लिख दिया तो मतलब ऑफ डे पे भी, अरे सर आ सकते हैं क्या 2 घंटे के लिए? और अगर कैरेक्टर, अगर वो ट्रैक बंद हो गया तो आप घर बैठ जाइए 3 महीने. और फिर ऐसा भी हुआ कि मतलब पीछे खड़े हुए हो आप भीड़ में, यू नो, किसी और का ट्रैक चल रहा है, तो वो आई थिंक वो मैं उनको ही देख के घबरा गया कि ये नहीं कर पाऊंगा मैं.
तो मैं दाल चावल ही खा लूंगा, चिकन करी राइस बाद में खाऊंगा कभी। अभी तो रेस्टोरेंट खरीद लिया सर। अच्छा काम चल रहा है। But the two of you are such revelations. I'm looking at you now, and I have to compliment you on your performance. I have to compliment your makeup team for the way, the body language, your body coach. 45 दिन का आप जो आपका workshop रहा है, you are fantastic. How you have transformed for the role, and you know, from a beaten down spirit to coming back, you know, into the show. And obviously because I've managed to see the show, and that's the reason why I can say this. So I really have to compliment you on your performance. Did you think that you'd pull it off? एक तो क्यों थोड़ा सा pressure भी रहता है ना, because नाम सुना हुआ है जमतारा, you know, so you know now that when people are coming in, they're expecting certain things. Little more pressure? Yeah, I think थोड़ा सा challenge हो जाता है, क्योंकि अगर आप अपना performance season 1 में even if you have done like 60 या फिर 50%, so you cannot go below that. आपको उसके ऊपर ही hit करना है. So थोड़ा सा रहता है कि क्या हम उस तरीके से इमोशनल जर्नी दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, एंड व्हाट न्यू यू कैन गेट, यू नो, कहीं वो फिर से रिपीट तो नहीं हो रहा है, मतलब आपने एक एस्पेक्ट गुड़िया का देख लिया है. सो द होल माई होल कंसर्न वॉज कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, कि अब आप मतलब दिस इज गुड़िया बट समथिंग न्यू अबाउट हर. तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि कैरेक्टर तो तुम जानते ही हो. तो सीजन 2 और 3 में कई बार एक्टर की ओवर कॉन्फिडेंस आ सकती है ना. बेसिक तो पता ही है हमें. कहानी बदल देते हैं ना वो लोग. That's what I think. क्योंकि नए लेयर्स ऐड हो जाते हैं. जो सीजन 1 में क्या है उसमें कुछ अलग लेयर्स थे, अभी सीजन 2 में आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, तो चैलेंजिंग आई नहीं थिंक रहता है. आपको स्पाइन पता होती है. आई थिंक आपको स्पाइन पता होती है कि दिस इज द स्पाइन. उसके ऊपर देन आपको सारी मरम पट्टी करनी होती है, और आप जितनी ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो तो वो अच्छा दिखता है. अदरवाइज यू आर जस्ट रिपीटिंग योरसेल्फ जो आप सीजन 1 में थे. आई थिंक ये भी लाइफ लाइक ही होता है ना यार, कि मतलब मैं कभी 30 साल का था, अब मैं 47 साल का हूँ, तो 17 साल में कुछ हुआ होगा ना. तो जब आई थिंक राइटिंग प्रोसेस में ही जब आप आगे लेके जाते हो कहानी को, सो नाउ द बिकॉज द इंटरेस्टिंग पार्ट इज व्हेन द कैरेक्टर्स जर्नी और देयर पाथ चेंजेस, you know, that is what you want to write about, and that is what exactly what the audiences want to see, you know, something else about the character which was not there in the season 1. तो फिर वो एक नया set of challenges. I guess also because they've got used to, अब कैरेक्टर्स जम चुके हैं उनके हाथ में. Correct. उसके आगे I guess पहले तो कॉन्सेप्ट से ही इतना एक्साइटिंग था लोगों के लिए. Yeah. Because the first season was not so much about characters, about concept. Yeah. Latter half of the season had that. This was now more about ये लोग आगे क्या करेंगे. तो हम ही सब ने जब पढ़ा था स्क्रिप्ट, मुझे याद है जब आपसे मिलने आया था तो मैंने कहा ये क्या है यार, ये तो करना ही पड़ेगा ये तो. बिल्कुल बिल्कुल. पैसे कोई बात नहीं, आप बहुत कम दे. लेकिन ये तो एक अलग कहानी है. जैसे हम बात कर चुके, रेस्टोरेंट आप ले चुके हो, ब्रदर योर परफॉर्मेंस वाज सो फैंटास्टिक. तुम इतना फास्ट बोल पाते हो. इंडिया में ना इतने कम लोग फास्ट स्पष्ट हिंदी बोल पाते हैं. और पता है वो आप बड़े बड़े एक्टर्स को देखोगे, नॉर्मली वो बोल ही नहीं पाते, हजारों टेक्स ले लेते हैं. यू नो, आई थिंक बहुत पके हुए एक्टर बन चुके हैं आप. इट लुक्स फैंटास्टिक. यू नो, इवन नाउ इफ आई सी यू, दोनों बोथ ऑफ यू आर लुकिंग सो डिफरेंट, एंड दैट इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट. वो एकदम उसके अंदर चले गए. तो हाउ मच डज अ 45-day वर्कशॉप हेल्प यू? कैन यू गेट बोर्ड ऑफ constantly doing the same thing? No, you never get bored of a workshop, because maybe we are such actors who love to do a workshop, who love to go on set when we are prepared. And when we have such team around like Somendra Sargudia and But we do get like exhaust. No, I'm so sorry, I'm disagreeing to that, but I do not get exhaust to workshops. I love to prepare more and more, get more close to the character, what it is saying. But teams अच्छी होती है ना साथ में, then it is never boring for you. और हमारी जो gang है जमतारा की, when you see बच्चू, Ponto, Shahbaz, all of that, it is always fun. Even if you come after 10 years and do season 10 or whatever season, it is always fun. क्या कहना क्या चाहते हो तुम? You know, for a lot of people who will see this, ये जो set है ये भी बहुत ही खूबसूरत है, because there is a part in the show which shows all these ये जो mobile phones हैं, and that there is this very symbolic in that show also. Everything sir you thought about, ये सारी चीजें लिखते हुए इतना सब डिटेल में सोच लिया था, या you went along with as it was going? Season 2 का defining visual mobility था. That was always the defining visual, because this is something. It was an invention of these guys. जो पांचवी fail है, they could come up with this stuff. You can imagine how talented they are. Correct. And there is a reason behind why this mobility exists. And there's a lot of these trees exist in Jamtara. Wow. क्या करते हैं, जाके टाई कर देते हैं, पुलिस आती है, घूम के चली जाती है. हाँ,
So there is no way to track these guys. Correct. It's so brilliant, absolutely. Yeah. मेरे को तो अभी हर एक जो SMS आता है मैं उससे डर जाता हूँ सोच रहा होता कौन वहाँ से फोन कर रहा होता है but you know sometimes a show like this like you said कि बहुत सारी stories आप डाल नहीं पाए ये टाइप के शोज एडिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज यू वांट टू पुट सो मच इन देयर फिर यहाँ पे मैं कोई लव स्टोरी पकड़ूं मैं पॉलिटिकल एंगल पकड़ूं मैं स्कैम पकड़ूं तो यहाँ पे द फिल्म मेकर कैन बी वेरी जम्बल्ड ऑल्सो हाउ डू यू नॉट गेट जम्बल्ड इन अ शो लाइक दिस तो हमारा ये थीमेटिक रेलेवेंस था रिवेंज इट्स अ काइंड ऑफ Yes. गुड़िया वर्सेस ब्रजेश Yes. एंड द अदर प्लेयर्स आर Yeah. in or out of in that game. So in that journey, what all scams are part of what is those scams that are going to help Sunny help Gudiya to achieve that. Right. And similarly, Brajesh has Rinku with him. Right. So then this gave rise to one scam versus the other scams. So if you see, fishing is driving the elections this time. Correct. The fishing money is driving. So what all fishing would then fall in that category that will drive our story. So none of these scams is force fit. It exactly that is the kind of scam these characters will need to deceive or to get ahead of Brajesh in the elections. सर आपकी Which तारीफ drive में by- कुछ जी, बताना चाहूँगा सर ये इंजीनियर हैं जी मैथमेटिशियन है ये जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है ना ये ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं सीन भी अच्छा तो इनका मैथमेटिकल दिमाग है ये जम्बल्ड हो ही नहीं सकते ये अच्छा नहीं हो सकते ये तो एडिट पे मतलब आर यू फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कैन यू बी वेरी इरिटेटिंग एज ए डायरेक्टर एंड एज एन एडिटर By the time we go to edit, I'm very detached with the material. अच्छा I'm absolutely ruthless. Wow. So kind of the very interesting scam that we shot, but we had to edit it out. Yeah, we had done that. मैथ्स but a lot of filmmakers get involved in their own beauty बड़ा इमोशनल हो जाते हैं ये अच्छा सीन है कहीं तो इसको डालना पड़ेगा यू नो सो दैट पार्ट आल्सो इफ यू हैव एडिटेड मतलब यू हैव इनफ फॉर 3 देन उसको 3 में यूज कर सकते हैं 3 में भी कर सकते हैं ट्रेलर टीजर में भी आ सकता है because we have this screening process post every this thing and we call these guys who have never seen who get easily bored अच्छा so that test trial we did that for season 2 नहीं ये So तो आप that was जीत गए very इसमें nobody gets bored in this one so congratulations on that it works ये good. Yeah, we did your that. friends in real life have you become जैसे होता है ना जब स्कैम में जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने किया उसके बाद स्टॉक टिप्स उनसे ही पूछने लगे कहते भाई हमने तो एक्टिंग किया था थोड़े हम लोग खुद खरीद रहे थे सो नाउ हैव यू गाइस बिकम लाइक वो सारे जो दोस्त बोलते हैं भाई ये सब चल रहा है वो सब चल रहा है रियल लाइफ में हैव यू बिकम मोस्ट ज्ञानी अबाउट जमतारा फॉर योर फ्रेंड्स या बिकॉज वी हैव लिव्ड दैट जर्नी Yeah. अभी तक तो हाँ ज्ञान तो हम अच्छे से बांट लेते हैं हमें पता है कि स्कैम कैसे होता है फिशिंग कैसे होती है आई थिंक देयर वाज अ पॉइंट व्हेन सर वाज फोर्सिंग मी कि सनी तुझे सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए अच्छा इस स्कैम के बारे में द केबीसी स्कैम व्हाट वी आर डूइंग इन द सीरीज तो हाँ हमारे पास वो ज्ञान सारा आ चुका है अब जिसको चाहिए हम बांट सकते हैं हम ज्ञानी हो चुके हैं पहचान बन जाती है एक शो के साथ में यू नो एंड देन जी सीजन 2-3 इज वेरी गुड नाउ इट्स अ नाइस लिटिल पासपोर्ट डज वर्क जो तुम्हारे लिए आ रहा होता है क्या बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है क्योंकि बस एक लिंक भेज सकते हो हैज दैट बिकम बेटर फॉर बोथ ऑफ यू ऑल Yeah, I think आपको the kind of work you want to do. Yeah. Like I always see the performance-oriented work. तो मतलब I love giving audition. हम लोगों को ऐसे जामतारा मिला था and I still do that. लेकिन उनके पास reference रहता है. And I love कि वो लोग बिल्कुल उस तरीके से नहीं लेते कि हाँ हाँ you are done or something, you are locked. But उनके पास एक reference रहता है तो वो फिर अपने हिसाब से करते हैं. So yeah. आपके पास स्क्रिप्ट की चॉइसेस खुल जाती थोड़ा That's what I mean. One thing which have happened really in our favor is people know what हमारी potentials क्या है. Yeah. Like any office we go सबसे पहले लोग हमें जमतारा के लिए congratulate करते हैं. And people already know कि ये तो कर ही सकता है. तो पहली छाती फूल जाती है हैं? हाँ ऑब्वियसली यार बाल खड़े हो जाते हैं बाल खड़े हो जाते हैं. बट आपके लिए सर अभी क्या है इज इट मोर नो कैन यू से नो मोर ऑफन नाउ yeah but I was always a very no person from the beginning तो इसीलिए अकाल पड़ा हुआ था तो उनको पहले उनको लगता था कि है क्या ये समझता क्या अपने आप को हर बात पे नो मैंने बहुत कम काम किया बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव काम किया पहले आई थिंक बट दैट वर्कड फॉर मी यू नो not commercially by the but time OTT came you were still a semi fresh face yeah nobody like the audiences didn't have a connect with me at all तो वो फिर वो एक कुछ रेड फिल्म करी मैंने जिसमें मुझे बहुत मजा आया मुझे करने का मन भी था सौरभ जी तो बहुत ही मजेदार हाँ बहुत बढ़िया था और तो फिर धीरे धीरे ऐसे रिकग्निशन चार्ट्स जो है ना वो थोड़ा सजते गए वो बट OTT के बाद एक्चुअली OTT से पहले इनसाइड से पहले तो मैं कुछ तीसरी चौथी बार गिव अप कर चुका था कि बस हो गया अभी नहीं हो पाएगा ये
Also, I always say this. It's again a stronger word to use. Is there a revenge mode for a lot of OTT actors now when you go for negotiations? क्योंकि पहले बहुत सारे लोग बोलते थे सर ये जम नहीं पाएगा, माउंटिंग नहीं हो पाएगी, इससे ये नहीं हो पाएगा, उससे वो नहीं पाएगा. तो जब वो टेबल पर बैठते हैं, now ball is in your court. यार आई थिंक वो ना कभी खत्म ही नहीं हो सकता है. इकोनॉमिक्स है ना इन्वॉल्व, ठीक है ना. तो आपको समटाइम्स यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, समटाइम्स यू हैव टू गिव इन, यू नो. एंड तो OTT, the whole thing about OTT was that it's so content driven and such brave content, you know, जो कि फिल्म में जिसके ऊपर बन ही नहीं सकती हैं. Correct. बनने ही दी जाएंगी वो. तो वो आई थिंक वो लालच था एक. और वो मैंने पर्सनली उसका ये लाभ उठाया कि जितना लपेट सकते हो लपेट लो अभी. यू नो, जस्ट टू लीव एन इम्पैक्ट विद द ऑडियंसेस. वंस द ऑडियंस एक्सेप्ट यू, फिर तो सबको करना थोड़ा पड़ता है. गैप ले सकते हैं. हाँ, गैप ले सकते हो और फिर सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है, you know? जैसे एक्टर्स का हो रहा है, टेक्नीशियंस एंड डायरेक्टर्स का सर, अब तो फॉरएवर लाइन लग सकती है. Yes, yes, absolutely. यार लाइन लगी हुई है नीचे घर पे. रोज 4-5 खड़े होते हैं बोरे में पैसे लेके. Like Budhia Singh, remember? Yes. That and जो this भी is इतनी a... कमाल की फिल्म थी. Yes. और अगर आप बोल रहे हैं उसके बाद थोड़ा अकाल आया, तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कैसे. No, though you get the stories, but the kind of stories that you want to tell is always going to be challenging. It's always against convention. So, But now you also have like there is a certain, not typecasting, but similar kind that you would look at Amit in. They are still coming into their own. Like, you know, she, like I said, revelation, because the look of the character is so different. For a director, will they be able to, you know, trust you with a light, sort of humorous, colorful content? Will that now come in your way because you've done such dark comedy? yeah, I'm getting those kind of. Yeah. Really? सर The Jamtara gives हमारे me that बीच में वो whole हुआ तो range. वादा, इससे मुझे याद आया. Jamtara mein you see, there is a whole range. Yes. There is humor, there is tension, there is thrill. So I get all genres right now. So I'm very Sure. thanks to them, because after season 1, Yeah. every production house that I went, they were saying कि यार actor कहाँ से ढूंढ के लाया. So that was the first. ये तो and मैं that भी was आपसे पूछ रहा consistent. था, कास्टिंग कैसी हुई? Everybody was talking about performances. So the scripts that come to me are all performance driven and newcomers basically. अभी सारी आप खुद अच्छे एक्टर हैं क्या? नहीं. तो आपका जो स्टाइल होता है, जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, कई बार पूरा एक्टिंग करके दिखाते हैं. सो हाउ डज ही शो इट यू ऑल? व्हाट एक्सप्लेन दैट प्रोसेस टू मी. That's bad. अच्छा. मतलब जो वो एक्टिंग वाला मतलब आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट हाँ. इट, बट आई थिंक सोम सर के बारे में हम लोग पूरा दिन बात कर सकते हैं. नहीं तो बात But करो ना, समय I think उनका सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है जो मुझे लगता है. कभी कभी कुछ सीन्स होते हैं जहाँ पे यू आर क्वाइट हेजिटेंट, यू नो, कि उसको टच करना है उस इमोशन को कि नहीं करना है. बट ही इज नॉट समवन जो काफी दूर आपसे बैठे हैं एंड सेइंग एक्शन कट एंड लुकिंग एट द फ्रेम्स. द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज ही इज विथ यू, अच्छा. and he is also traveling with that emotion. So जो हमारे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर के साथ भी हो रहा है. So आपको थोड़ा सा रिलीफ रहता है कि okay, someone is there who is understanding that thing. And I think because of him only we always get those brilliant silences जो एक एक्टर को बहुत ज़रूरी होता है सीन के लिए. अदरवाइज सबका रिदम अलग है. मतलब DOP is doing something else, कोई डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है. सो आई थिंक अगर आपका जो कैप्टन ऑफ द शिप है, ही इज देयर, सो ही कैन गिव यू दैट दोज ब्यूटीफुल साइलेंसेस. और फिर वहां पे आप हो गया इसका अगली फिल्म में. नहीं हुआ सर. आपको क्या मतलब. बट इनका मीटियोरिक राइज पिछले 2 साल में, अमित सर का कुछ चलन बदला है क्या सेट पे? नहीं कैसे देखे आप? आज भी उतना ही डरा देते हैं हमें. इतना पहले डरा रहे थे. तू यार काम मिलने बंद करवा देगा. But it's true, you know, when you work with very good performers, आप बहुत खुश हो जाते हैं ना, आप पता है कि एक्शन रिएक्शन बहुत अच्छा होने वाला है. सर हम So, लोग एकदम हाँ. कंफर्टेबल होते हैं. लाइक हमें पता हमें होता है कुछ नहीं करना होता, हमें कोई एफर्ट जो बॉल आएगी वो कैच करनी है. सिंपल एज दैट. तो मतलब जब हमारे सीन्स होते हैं, बिकॉज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको करना. बट विथ हिम वी आर लाइक ठीक है, यू डू एवरीथिंग. जो आ रहा है बस रिएक्ट कर दो. But अभी भी कुछ is there unfinished business in your head? जैसे कि अब जो बहुत सारी चीजें जो आपकी शायद छोड़ी हुई थी आपने कर लिया, बट दिमाग में ऐसे कुछ रहता है दैट अभी भी कुछ वो विश लिस्ट में बचा रहता है? बहुत यार, बहुत. Not performances, I'm talking about things that you might want to do. Yeah, a lot of things. Like nobody's ever asked me this, but this is a great question. Yeah. Like I really feel कि
the problem with mankind today is that we are not doing enough with our hands, like literally, you know. So तो मुझे कारपेंट्री करने का बड़ा शौक है, Wow. बट यहाँ पे कोई ऐसा मतलब एक स्ट्रीमलाइन कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे आप जा सकते हो 6 महीने डेडिकेट कर सकते हो अपने आप को. तो अभी मैं थोड़ा सा और काम कर लेता हूँ, थोड़ा और सिक्योर हो जाता हूँ, तो फिर बाहर जाके मेरा बहुत मन है कि मैं 6 महीने का कोई कोर्स अच्छा कोर्स करके Totally away from. और मुझे ना वैसा कारपेंटर बनना है. उन्हें बेल्ट नहीं पहनते हैं, इधर टूल ये टूल वो टूल, चश्मा लगा मुझे ना वो सब नहीं करना है. तो वह और कोई एक मुझे ड्रम सीखने का बड़ा मन है. अच्छा. Drums, yeah. Well, that's good. You have some ambitions. Film I work? तो have like mad ambitions, man. Like Yeah. many things to do. Singer भी बनना है, डांस भी. ये हिप हॉप You are a बहुत very अच्छा good dancer, of course. वो तो है ही. Yeah, but I do sing as well. और पता नहीं फिर 2 साल बाद लगेगा कुछ और ही करना है, तो I'm still that kid जैसे आज फौजी बनना है, कल डॉक्टर बनना है, कल कुछ और बनना है, so I'm still. ऐसे ही होना चाहिए. One should have that rhythm in your head. I like writing also, sir. Writing. सर मेरी स्टोरी ले लो सर. सर यहाँ ऑडिशन चल रहा है, पता है आपके लिए. सर मैं अपना यहाँ से एक्टर नहीं बेच रहा. मुझे राइटिंग बड़ा अच्छा रैप किया था. सर मैंने क्या गाना बनाया. हाँ, गाना सीजन बनाया था 3 में शायद. ना. तो आपने एक बात सुनिए, आप इतना काम कर रहे हैं, इन तीनों में से आपने किसको लिया है बाकी शोज में? ये फिल्म में किया था, पूछो. मैंने पूरा नेपोटिज्म किया है मैंने. पूरा nepotism. I got my Jamtara team as a first priority because I knew they would be so good. But I think that's a very good thing also. But none of us cracked. नहीं, बट हम लोगों ने फिर सोचा कि क्या कि सोमेन सर जो है ना रॉनेस कैसे मिलेगी. अब तो जान गए हमको, नए लोगों के साथ काम करना चाहिए. सर हमको तो निकाला गया है सर. आपने तो सोचा ये हमारा. अभी सब कुछ ना बताएं, क्योंकि क्या पता कुछ लोग ऐसे देख लें जिन्होंने बिल्कुल शो नहीं देखा होगा. बहुत कुछ है अभी जानने के लिए. We have not reached that stage yet. Okay. Just before I wrap up also, just 1 or 2 questions. Do you manage to go out into the theaters and watch a lot of cinema right now? बहुत सारे लोगों की thought process है, cinema has to change, a hybrid model has to come. But the problem with watching in the hybrid model is, तुम अपने घर को अच्छी तरह सेटअप कर सकते हो 2 साल में, वैसे टाइप का थिएटर बन जाएगा, यू नो. एंड अपने दोस्तों के साथ ये देख सकते हो. मैं बहुत सारे लोगों के साथ ये देख रहा हूँ. Will the time come where a large scale cinema only will be watched and a medium level cinema बिल्कुल बंद हो जाएगा और they won't have an audience? This is to all of you. मुझे एक्चुअली इसका उल्टा लगता है, स्पेशली हिंदी ऑडियंसेस वाला सिनेमा, यू नो, कि जो मीडियम बजट की फिल्म्स हैं ना, दे कैन वर्क मोर बिकॉज द ऑडियंसेस वे ऑफ viewing has changed. Like they are not anymore the escapist sorts. तो अगर वो escapist cinema भी अगर उनको देखना है तो it should be from around their life, something which they can identify with. Correct. You know? Correct. ये नहीं कि मतलब 25 माले से कूद गए, घुटना बचा हुआ है. छलांग लगाए तो स्विट्जरलैंड पहुंचे. हाँ, तो मतलब ऐसा भी आई थिंक, क्योंकि आई थिंक OTT ने बहुत चेंज कर दिया है Of course. कोविड टाइम्स में, यू नो. तो उनको लगा कि अरे यार ये तो मतलब रियल सिचुएशंस में भी बड़ा मजा आ रहा है देखने में, रियलिस्टिक चीजें देखने में बड़ा मजा आ रहा है, यू नो. फिर जब आप वो 2 साल इन्होंने ज्यादा देख लिया तो आई थिंक फिर वो वापस फिर वहां से एस्केपिज्म में जाने में है इशू है, कुछ तो इशू है. वो तो इशू को एज ए डायरेक्टर व्हाट डू यू फील? I think it's very exciting. I think 3D, 4D, 5D, that kind of, as a filmmaker, I would like love Costing will increase, but Yeah. I think it's worth it. I think as a filmmaker, I would like to do a 4D, 5D, whatever that Ds are there. I'd love to. Yeah. As long as it's entertaining and it brings the audience back to the theaters, I'm all for it. Yeah. 15-20 मिनट में आपका तो मैं समझ गया हूँ. You all want the big screen only. ये भी अगर हो जाए, that much I figured out with the two of you, right? You would want to see 70 mm बड़ा. Like Yeah, if the character is like larger than life, so of course आप वहाँ पे देखना चाहते हो, और अगर आप उसे engaging करा सकते हो अपने audience को. Otherwise, if it's like fine, तो पर I don't दोनों mind. 70 mm. I don't mind, I don't yeah, mind. of course, yeah. Like मैंने भी एक कर ली है अभी, which is coming up. इसने भी एक कर लिया है, which is coming up. 70 mm. और करनी है. ऐसा कुछ नहीं है, खत्म नहीं हुआ. You know, credit where it's due. They deserve all the credit. A fantastic performers. Like I said, I started this interview with saying that I really don't care about a film's name, the script, because if the actors can convince me, as is the case with salesmen, आप एक पेन को अगर बेच सकते हो, उसको बोल सकते हो इससे सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ आपकी ज़िंदगी बकवास है इसके बिना, that's all that matters. So I sometimes feel performances are the only thing that can sell
products, and this is one of them. So thank you guys for giving this fantastic Thank you. thing. Sir, thank Till the you. next time, take Thank care. you. Thank you for Thank you, empowering sir. me. Thank you. And I'll see you guys soon. Bye bye. Bye bye.